Hello everyone, today I will discuss a special type of integration with you. It is based on trigonometry. Look at the question here. All these questions are based on the same pattern, right? So let us discuss one by one all these questions. Let us start with the first question. The first question is sine of x minus a upon sine x. We have to integrate this, right? So first thing which comes into our mind that we can apply the formula of sine of x minus a in the numerator, right? So I am doing the same thing. तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं. तो वी हैव फॉर्मूला हियर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, right? In the denominator we have sin x, right, and dx here. Now what we can do now, we can separate these terms. So sin x upon sin x into cos a minus cos x upon sin x into sin a, right, and dx here. So we have here this cancel out and we have integration of cos a with respect to dx and integration of cot x, because cos by sin is cot x into sin a with respect to dx. Now because we integrate कर रहे हैं with respect to x, so this is constant, so we can take this constant outside the integral sign. We have 1 dx. Similarly here we are integrating with respect to cot x. So cot x is the variable, sin is constant, तो sin बाहर ले आते हैं, right, and we have to integrate cot x dx. Now integrate this, so integration of 1 with respect to x, which is x here, because 1 को हम लिख सकते हैं x रेज़ पावर 0 और इंटीग्रेट का फॉर्म लगाएंगे तो आ जाएगा. तो वी हैव x cos a एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x. cot x को लिख सकते हैं cos x by sin x, राइट, cot x को लिख सकते हैं cos x by sin x. तो sin x का डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर, तो आंसर विल बी log ऑफ sin x प्लस सी. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं log sin x प्लस सी. तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस a इज दिस. Now come to the next question. Next question is sin x upon sin x minus a. Now we observe that कि अगर हम नीचे, because we know that a plus b by c can be written as a by c plus b by c, but a upon b, a minus b cannot be written as a by a minus a by b. This is wrong, right? So what we can do here कि हम इसको सिंगल टर्म बना देते हैं. तो क्या करते हैं, x माइनस a को p पुट कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा, x हो जाएगा p प्लस a, dx बन जाएगा dp. now put this value here, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा p प्लस a अपॉन साइन p. तो आप ऑब्जर्व करोगे प्रीवियस क्वेश्चन बन गया बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ चुका है. तो नाउ वी कैन अप्लाई द सेम कंसेप्ट है. फॉर्मूला लगा देते हैं. फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड देन सेपरेट आउट sin p and we are integrating this with respect to p. so this will cancel out. cos a का इंटीग्रेशन with respect to p करेंगे तो आंसर आएगा p. तो p cos a sin a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा cot, एंड cot का इंटीग्रेशन log sin p. now last step we have to put the value of p here, क्योंकि हमने p assume किया था. तो p है हमारे पास x minus a. तो फाइनल आंसर विल बी x minus a cos a plus sin a into log of sin x minus a plus c. So in this way we can solve this type of question, right? Now move to the next question. Next question is sin x plus a upon x plus b. तो सेम अप्रोच फॉलो करेंगे कि हम डिनोमिनेटर जो एंगल है x प्लस बी इसको सिंगल टर्म बना लेंगे. तो x प्लस बी को पुट कर देते हैं p, तो x आ जाएगा p माइनस बी, तो dx इक्वल टू dp, राइट. सो अभी पुट करते हैं और वैल्यूज. तो साइन इन प्लेस ऑफ x वी हैव p माइनस बी प्लस a अपॉन साइन p, एंड हेयर वी हैव dp, राइट. तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. इसको लिख देते हैं साइन ऑफ p प्लस a माइनस बी, ताकि p अलग बन जाए. और प्रीवियस अप्रोच की तरह हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे साइन ऑफ a प्लस b का. तो ये बन जाएगा आपका साइन p कॉस ऑफ a माइनस बी, राइट. एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस कॉस p साइन ऑफ a माइनस बी. सेपरेट आउट कर देंगे, साइन p कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ dp आ जाएगा. सबके साथ है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ dp. सो कैंसल आउट हो गया. तो कॉस a माइनस बी बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू p इज p, राइट. एंड साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया.
integration of cot x is log sin p. And last step, don't forget to put the value of p here. तो p की वैल्यू है हमारे पास x plus a, तो पुट कर देंगे तो x plus a into cos of a minus b plus sin of a minus b into log of sin, in place of p we have x plus b plus c. तो इस तरह से ये आंसर आ गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे cos की टर्म में आ गया, तो x माइनस a को p पुट करेंगे तो x p प्लस a हो गया. dx आपका dp बन जाएगा. अब पुट दिस वैल्यू है तो cos ऑफ p प्लस a अपॉन cos p dp. फॉर्मूला लगाते हैं cos a प्लस b का, तो cos a cos b माइनस sin a sin b. सेपरेट आउट कर लेते हैं, cos p दोनों के नीचे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा dp. ये कैंसल आउट हो गया तो cos a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू p इज p माइनस sin a बाहर आएगा. बट यहाँ पे इस बार अब cot की जगह tan आ गया, तो tan का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस लॉग cos p और लॉग sec p. तो कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं लॉग sec p लगा देता हूँ. एंड लास्ट स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ p हेयर. एंड वन थिंग मोर, यहाँ गलती होती है, कई बार यहाँ पे मिस्टेक होती है. लगता है कि कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि a इंटू पी एंगल में है, बट ये p अलग से है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए, राइट. तो p की वैल्यू पुट करते हैं x माइनस a, तो x माइनस a cos a माइनस sin a इंटू लॉग ऑफ sec x माइनस a plus c. So this will be the answer, right? Now on the last question, if you look at the question here, it is cos x plus a upon cos x plus b. Same approach we will follow, that we will assume that x plus b, the angle in the denominator, is a single term. So x will be p minus b, dx will be dp. इंटीग्रेट करते हैं, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो वी हैव cos ऑफ p माइनस b प्लस a अपॉन cos p, राइट. बिकॉज p डिनोमिनेटर में है तो p को सेपरेट आउट कर लेंगे, तो वी कैन राइट दिस एज cos ऑफ p प्लस a माइनस b अपॉन cos p. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b, तो ये बन जाएगा cos p cos ऑफ a माइनस b देन माइनस sin p sin a माइनस b. नाउ सेपरेट आउट दीज टू टर्म्स, तो cos p दोनों के नीचे आ जाएगा, राइट. और फिर इसको कैंसल आउट कर देते हैं. ध्यान रखिएगा, वी हैव टू इंटीग्रेट cos a माइनस b विद रिस्पेक्ट टू p, और p वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. तो cos a माइनस b बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो इनटू p आएगा, तो यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट हियर इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन. यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस b, दिस इज tan p, साइन बाई cos इज tan, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan p इज माइनस लॉग cos p और लॉग sec p, तो आई एम पुटिंग लॉग sec p. पुट द वैल्यू ऑफ p है, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस x प्लस b, तो x प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b देन माइनस साइन a माइनस b लॉग ऑफ sec p की वैल्यू क्या है हमारे पास, sec p की वैल्यू है x प्लस b प्लस c. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ question here, right. One more thing which I have to mention here, if sometimes in exam they ask prove that the answer will be x cos a minus b minus sin a minus b into log of sec x plus b plus c. तो समटाइम स्टूडेंट्स विल कंफ्यूज कि आंसर तो हमारा x प्लस बी इंटू दिस आ रहा है. देखिए टर्म बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बट x प्लस बी की जगह x है, तो ये b कहाँ चला गया. तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ भी नहीं. जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वी हैव x cos a माइनस बी विच इज हेयर, एंड द अनदर टर्म इज विच कम्स फ्रॉम हेयर इज b cos a माइनस बी, एंड दैट टर्म added with this constant, let us say c dash, gives you another constant, so it is represented by c here. तो हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं if they ask in the examination, right. So we can apply the same concept all the 5 questions. The constant is added with the constant, it gives you another constant, right. Thank you very much.